Sir, thank you very much, sir. I vehemently oppose the very presentation of this bill. As correctly pointed out by my learned friends, this is a clear violation of the Constitution. It is a violation of the fundamental right enshrined in our Constitution. Article 14, Article 15, Article 25, Article 26, and Article 30. Sir, this bill is ill-motivated, sir. You have got dirty agenda with you. Sir, ये खराब मंशा से बिल लाया गया है। ये कहा जा रहा है कि ये खराब मंशा से बिल लाया गया है। their boxes system will be collapsed, sir. That is going to happen. Similarly, sir, various bodies, work board and work council, all these bodies will have no existence. They will not have any value because all the powers. तो इनका कहना है कि जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ से जुड़ी जो राज्य की भी संस्थाएं हैं उनके किसी के पास कोई शक्तियां नहीं रह जाएंगी इस बिल के आने के बाद, वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। और यही सवाल थोड़ी देर पहले सुप्रिया सूले ने भी उठाया था। यही सवाल थोड़ी देर पहले सुप्रिया सूले उठाती हुई नजर आई थी और उन्होंने कहा कि फिर राज्यों के पास क्या रह जाएगा। उन्होंने तमाम ऐसे मामले और गिनवा दिए कि सरकार वही करने की कोशिश कर रही है, हर अधिकार अपने पास लेना चाहती है। बाकी देशों का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया और कहा कि उन देशों के पास भी है, वहां पर भी वक्फ के अधिकार हैं। This will jeopardize all the system. Now, work board and council. If you go through that bill, sir, what is happening? They have no any power. All the powers are going to be vested with the collector. As per this act, collector is superior than the chairman of the वक्फ बोर्ड, sir. That is कलेक्टर सुपीरियर होगा, उनसे बड़ी पोजीशन पर होगा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से। ये भी यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि वो उनसे सुपीरियर होंगे, उन्हें फैसला लेने का अधिकार होगा। ये कैसे संभव है? It become impossible. That is the funny thing, sir. This bill says that. ईटी मोहम्मद बशीर को आप सुन रहे हैं, IOML से आते हैं और वो सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देश के सेक्युलरिज्म को बर्बाद करना है। If that is clear, then also it cannot be evacuated. So in fact, sir, you are encouraging encroachment on Waqf land. That is another thing. Sir, another thing, we can very well understand powers of the Waqf administration. They will have no, this chairman and the Waqf board members, they will have no any power. In this various bodies, in the Parent Act, there was a clause. What was that? From various constituency members are there. There was a stipulation that there should be Muslims. But here you are saying only two names. That should be non-Hindu, non-Muslims. Even the name of a Muslim is not mentioned in this, sir. It means that you want to engross the entire system according to your liking. That is what is happening, sir. And we have to understand one more thing, sir. Government is trying to create a lot of injustice, sir, because we had a lot of work. I have participated in 50th Lok Sabha. A JPC was constituted under Mr. Rahman, our leader. तो ईटी मोहम्मद बशीर ये भी कह रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम को जगह दी जा रही है वो भी गलत है। It was very clear. ये फैसला गलत है और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं। After a lot of study, Rahman Khan committee recommended certain things and amendment was made accordingly. Now you are repealing all these clauses. So what I am saying is you are cruel in this. You have to be sympathetic in this, sir. This legislation, you are killing, ruthlessly killing the system, the work system. I urge upon you to prevail wisdom. You must think about that. Don't poison this country in a different way. That is what you are doing. Your intention is to spoil this country's communal. तो इनका ये कहना है कि आप इस बिल के जरिए एक तरह का वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये सभापति महोदय से कह रहे हैं ईटी बशीर कि आप इसको लेकर फैसला लें, इस जो देश का सौहार्द है उसे मत खराब करें। इस तरह की बातें कही जा रही हैं जो विरोध में इस बिल को लेकर कह रहे हैं और सेक्शन 40 को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सर, I strongly oppose the amendment bill on behalf of Communist Party of India Marxist. Sir, this is against our
motto, unity in diversity. This bill has breached our constitutional right of practice of religions. This bill has violated the constitutional article 25, 26, 27, 28 and 30. As per the bill, the Waqf Board will become a nominated body. Only intention of this bill is to demolish the Waqf. तो ये जो इंटेंशन है इस बिल का, उसे सिर्फ वक्फ को डिमोलिश करने का, उसे खत्म करने का है, ये कह रहे हैं. Done by the government with any states or with a Muslim or other organization. तो किस तरह से आप ये देख रहे हैं कि उस पर सब अपनी अपनी जो बात है वो यहाँ पर रख रहे हैं, और ज्यादातर आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से कि शक्तियां जो है वो दरअसल उनको खत्म करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, और इसको विड्रॉ किया जाना चाहिए एक एक कर सब यहाँ पर ये आवाज उठाते हुए. लेकिन इधर अफजाल अंसारी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको ये सुनवाते हैं. अफजाल जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल आज इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? हमारी पार्टी हम जोरदार विरोध करेंगे, इसलिए कि सरकार ये बिल्कुल नाजायज काम करने जा रही है. कोई जरूरत नहीं है दखल अंदाजी की. यह एक ऐसी संस्था है जिसमें चुने हुए लोग इसका संचालन और व्यवस्था करते हैं. पुरखों ने अपनी जमीनें अपनी स्वेच्छा से ये दान में दी हैं. उन जमीनों का उपयोग और उसका प्रबंधन करने वाले चुने हुए लोग हैं. उसमें सरकार के किसी दखल अंदाजी की जरूरत नहीं. इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है. इन्होंने रेलवे की जमीनों को, सेना की जमीनों को, नजूल की जमीनों को हथिया करके अपने चहेते अडानी और अंबानी की सेवाओं में समर्पित किया. ये चाहते हैं कि वक्फ की जमीनें भी इन्हें खल रही हैं, उसमें भी हम अपनी मनमानी करें. चुनी हुई बॉडी को हटा करके ये चाहेंगे कि वहां हम मनोनीत किए हुए लोगों को वहां बैठाएं. तो ये इसका जोरदार विरोध किया जाएगा. सरकार ने ये कहा कि कई सारे गरीब मुसलमान हैं, महिलाएं हैं, जिनको आज तक वो सुविधाएं नहीं मिली हैं जो वक्फ के पावर हैं, उसको मिसयूज किया गया है. नहीं, वो सब सुविधाएं जहां न मिलने की सवाल है, उनकी नीयत साफ नहीं है. ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय जमीन हथियाने वाली पार्टी है और अपने चहेतों को देने वाली पार्टी है. ये चलने नहीं दिया जाएगा. अंसारी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि विरोध करेंगे, और ये भी कहा कि ये चलने नहीं दिया जाएगा. ये कहते हुए दिखाई दिए. वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन का बिल है, जो प्रस्ताव है, वो आज टेबल कर दिया गया है, और इंडी गठबंधन का जो पूरा कुनबा है वो विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ऐसे प्रावधान हैं जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए किए गए हैं, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए गए हैं, जो पहले नहीं थी. और अब इसी को लेकर फिरंगी महली क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए. वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो ड्राफ्ट हम लोगों ने देखा है, उसमें जो जिन भी अमेंडमेंट्स की बात कही गई है, वो हम ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पर नाकाबिल कबूल है. क्योंकि सबको अपने जहनों में बात रखनी चाहिए कि वक्फ एक पूरी तरीके से इस्लामी मामला है, जो कि अपने इस्लामी कवानीन के ज़रिए से उसके मैनेजमेंट को करने का हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ और इख्तियार हासिल है. वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में वक्फ किया है. Government, and 1 or 2 seconds, and you are removing section 104, removing section 40 means there is no need of a Waqf board. The Waqf board become totally powerless. That means you are dismantling the system. So, totally it is a dismantle of the system. So, sir, it is absolutely against the principles of Constitution, and also it is lacking bona fides also. And further, I would like to quote Article 13(2) of the Constitution. Kindly see Article 13(2) of the Constitution. That is Part 3, very specific. That is the laws in consistence with or derogation of the fundamental rights. Sir, Article 13, Clause 2, I quote: "The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in connection of this clause shall not, to the extent of the contravention, be void." So, sir, I caution this House, I caution the government that if law is, you can very well pass.
You are having absolute majority in the House. But I caution this government, if it go for a judicial scrutiny, definitely this bill will be struck down. देखिए आप इनके साहब को सुन रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी कराएंगे, ये जो हाउस है इसमें जो गवर्नमेंट है उसे पूरी तरह से बहुमत है, लेकिन अगर जुडिशियल स्क्रूटनी कराते हैं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये कह रहे हैं। इनके प्रेमचंद को आप सुन रहे हैं, तो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सवाल उठाता हूं इस गवर्नमेंट पर। तो ये यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक, चाहे डीएमके की बात कर लीजिए, चाहे एसपी की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की यहाँ पर बात कर लीजिए, या तमाम और जो पार्टी यहाँ पर हो, वो किस तरह से वक्फ संशोधन बिल जो ये टेबल किया गया है इसके खिलाफ है और इसको वैमनस्यता फैलाने वाला बिल कहा जा रहा है और क्वेश्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। So, sir, and a very, very important thing is, a person who had been practicing for the last 5 years as Muslim can only donate the property, but the non-Muslims can participate in the administration. It is total contradiction. फिर से वही नॉन मुस्लिम्स की जो जगह दी गई है उसको लेकर यहाँ पर एनके प्रेमचंद भी सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले सुप्रिया सुले ये पॉइंट रेज कर चुकी हैं, कनिमोई ये पॉइंट रेज कर चुकी हैं, कांग्रेस ये पॉइंट रेज कर चुकी है। सेक्शन 40 को लेकर भी सवाल यहाँ एनके प्रेमचंद उठाते दिखाई दे रहे हैं। It will be taken into consideration. So I strongly oppose the introduction of the bill. Thank you very much. श्री थोल थिरुमा बलवान। அவைத் தலைவருக்கு மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். அறிமுக நிலையிலேயே இந்த மசோதாவை நான் கடுமையாக எதிர்க்கிறேன். நாட்டின் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கக்கூடிய வகையில், மக்களிடையே நிலவுகிற நல்லிணக்கத்தை பாதிக்கிற வகையில் உள்நோக்கத்தோடு இந்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்திய உணர்வோடு வாழ்கிற இஸ்லாமியர்களை அந்நியர்களைப் போல காட்டுகிற முயற்சி மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது. அவர்களுக்கான சுதந்திரத்தில் தலையிடுவது அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானதாகும்। आप इस पर सुन रहे हैं किस तरह से इस पर अपने अपने जो विचार हैं वो यहाँ पर रख रहे हैं तमाम सांसद। लेकिन इस बीच सलोनी हमने देखा कि सवाल भी उठाया गया था, ये कहा गया कि मीडिया में पहले आ जाता है, सर्कुलेट नहीं किया गया, जबकि स्पीकर कहते हैं कि पहले ये सर्कुलेट किया गया है। तो आप कैसे ये सवाल उठा सकते हैं? बल्कि बीच में उठते हैं किरण रिजिजू भी। बिल्कुल, और बताते हैं कि किस तारीख को, दरअसल 6 तारीख को सर्कुलेट किया गया था, ये जानकारी भी दी जाती है सभापति की तरफ से। लेकिन कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, ये तमाम वो दल हैं, सुप्रिया सुले, ये तमाम वो चेहरे हैं जो विरोध में लगातार बोल रहे हैं और जो प्रावधान किए गए हैं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उसके खिलाफ वो दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका विरोध करते हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।